Hello everyone. So welcome to our channel Kraken. So today in this video we are going to discuss another important topic of bank financial management for CIB. That is Altman's Z model scoring. So it comes in the exams normally 5 marks, 1 numerical, but in the last CIB exams there are more theoretical questions as compared to the numericals. So but this questions is very must for the exam point of view. So let's discuss this. So in this video we are going to discuss the theory part. What do you mean by the Altman's Z model? So what is the formula? This is the formula and these are the some terms. So let's first discuss this. So this video is very important for the next upcoming exams. So first one is, what do you mean by Altman's Z model of scoring? So ये जो model है, this is given by Dr. Edward Altman. So as per the name of the Dr. Edward Altman, this model is known as Altman's Z model. So by using this Altman's Z model score, someone can forecast the financial health of the company within the next or upcoming 12 months. So we can say in the next 12 month के अंदर what will be the financial health of a company, right? What will be the health of a company that we can easily calculate. So next to 12 month के अंदर how the company will behave with respect to the financial position, we can easily calculate by using this score, right? So this model have something like 5 ratios. So this is the formula for this model. You just need to remember, this is the big one, you can see this, but you can easily remember. You just try to remember 5 numbers, 12 in this sequence, right? Just try to remember in this sequence 12, 14, 33, 06 and 10, right? And then just divide by 10, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1.0. So ये जो आपका 5 numbers है, this is very important. Then you can easily see what is the, let me write you once again for your convenience. See, first we need to remember 12, then 14, then 33, right? One second. So next one 33. So next one is 06. Next one is 10, right? So this is the number 12, 14, 33, 6, 10. सो आपको ये वाला नंबर याद रख लेना है. सो बाद में बस इसको डिवाइड बाई 10 कर लेना है, लाइक पॉइंट 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 एंड मल्टीप्लाई विथ ए, मल्टीप्लाई विथ बी, मल्टीप्लाई विथ सी, मल्टीप्लाई विथ डी, मल्टीप्लाई विथ ई, और ये सब हो जाएगा आपका एडिशन. So this is the formula. You can easily see this is 1.2 multiplied with A, 1.4 multiplied with B, 3.3 multiplied with C, 0.6 into D, 1.0 into E. So this is the formula. Just by using this formula you can easily calculate. So what do you mean by A, B, C, D, E? So these are the some 5 ratios. This is the combination of ratios. Like what do you mean? A means working capital divided by total asset. What is A? A is working capital divided by total asset. So first we will go through this ABCD, then I will tell you what do you mean by working capital, what is total asset, what is return earning. We will discuss more in details. So next one is, what do you mean by B? B is, just try to remember this formula only so that you can easily get the answer. So what is B? B is retained earning. Right, just try to remember this. I'll tell you the details meaning. So retained earning divided by total asset, right? Retained earning divided by total asset is the B. If you have the retained earning and total asset, then you can easily calculate B, right? So next one is C. So C equal to earning before interest and tax. So you can say EBIT, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स. मतलब आपका जो टैक्स एंड इंटरेस्ट देने से पहले आपका जो भी अर्निंग्स है,
राइट, दैट इज द अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइड बाई टोटल एसेट, ये आपका सी है. सो नेक्स्ट वन इज डी. साइमल्टेनियसली डी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी MVE, राइट, डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, राइट. सो मार्केट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो भी आपका इक्विटी है उसका मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई आपका लायबिलिटी एल को हम पकड़ दें, ये है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो विल डिस्कस व्हाट डू मीन बाय द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी in the coming slides. So this is D, just try to remember D is market value of equity divided by long term liability. So next one है हमारा what is E. E is sales divided by total assets. So E है sales divided by total asset. So total asset सब में डिवाइड हो रहा है बस आपका D को छोड़ के. So इसमें और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आपका A है आपका वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, बी है आपका रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई टोटल एसेट, सी है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई टोटल एसेट, और ई है आपका सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट. एंड आपका नेक्स्ट बच गया एक डी. देखिए ABCD सब में आपका टोटल एसेट रह रहा है, बस डी में थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज इक्विटी जो है उसका मार्केट वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाई लायबिलिटी, जिसका जो भी लायबिलिटी रहेगा दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. हमारा लायबिलिटी क्या रहता है, आपका लायबिलिटी हमारा रहता है जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म समथिंग लाइक करेंट लायबिलिटी, दैट इज विद इन 12 मंथ के अंदर जो रहेगा, एंड दैट इज मोर देन 12 मंथ. अगर 12 मंथ से ज़्यादा रह जाएगा दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, राइट. सो इसका आपका याद रहेगा. ए आपका है वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, बी है रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, सी है EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, जो भी अर्निंग है बिफोर पेइंग एनी टाइप ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट वट एवर द अर्निंग दैट इज डिवाइड बाई टोटल एसेट्स. एंड नेक्स्ट ई इज आपका सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, एंड डी है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो ये आपका फॉर्मूला याद रहेगा. बस उसी को जैसे कि ए फैक्टर का आपको जैसे बोले थे 12, जस्ट इसको याद रख लेना है, राइट. 12, 14, 33, 06 एंड नेक्स्ट वन इज 10. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ए के साथ, इसको B, C, D, E, ये सब एडिशन हो जाएगा 10 एंड इसको सब पॉइंट याद रखिएगा. जो भी है 12, 14, 33 एंड 06 एंड 10 सबको पॉइंट कर लीजिएगा. दैट्स ऑल, दिस इज द फॉर्मूला. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं जो कुछ टर्म्स है, जैसे कि हायर द वैल्यू ऑफ जेड लोअर विल बी द डिफॉल्ट रिस्क. सो जेड का वैल्यू जितना भी ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो रिस्क है दैट विल बी वेरी लेस. सो ये आपका जेड का वैल्यू एंड रिस्क, इसको हम ये बोल सकते हैं इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क. जितना हमारा जेड का वैल्यू ज़्यादा रहेगा रिस्क हमारा उतना कम रहेगा. वी कैन से साइमल्टेनियसली रिस्क जितना हमारा ज़्यादा होगा जेड का वैल्यू साइमल्टेनियसली कम हो जाएगा. सो इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे जेड का वैल्यू, वी कैन इजीली कैलकुलेट हाउ द कंपनी विल बिहेव financially in the next upcoming 12 months or in next upcoming 1 year, and what will be the risk factor for that company or industry. We can easily calculate, right? So next हम कुछ टर्म लिख देते हैं, जैसे कि हमारा ए में क्या था हमारा वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट, ठीक है. सो टोटल एसेट को हम लास्ट में जैसे कि आपका एसेट मतलब क्या है, जो भी आपका कंपनी ओन करता है एंड दैट इज इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, जो भी हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली एंड व्हाट एवर द कंपनी ओन्स इट. सो फॉर द एसेट के लिए हमारा ओन्स इट जो भी है वो वाला उसका एसेट रहेगा, ठीक है. सो इसको पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल NWC. सो वर्किंग कैपिटल को हम ये बोल सकते हैं दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी करेंट एसेट. सो वर्किंग कैपिटल क्या है, करेंट एसेट. सच एज करेंट एसेट में क्या जाता है आपका कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, कस्टमर्स अनपेड बिल्स एंड इन्वेंटोरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, वट एवर द करेंट समथिंग लाइक CA एंड CL. करेंट एसेट माइनस सब्ट्रैक्टेड बाय करेंट लायबिलिटीज. सो करेंट एसेट जो कि आपका कंपनी के पास
एट द प्रेजेंट टाइम और इंस्टेंटली जो उसके पास अवेलेबल है। जैसे कि अभी आप बोलेंगे कोई कंपनी को अगर उसके पास कैश अवेलेबल है दैट कैन इजीली गिवन टू यू। सो कैश है आपका हो गया करेंट एसेट, जो कि टाइम इंस्टेंटली दैट कैन गिवन टू एनीवन, राइट। सो अकाउंट रिसीवेबल्स, जो कस्टमर का ऑन पेड कुछ पेमेंट करना मतलब देना बाकी हो गया है, सो ये रिसीवेबल आपका है जो मिलना था पर मिला नहीं, बट दैट कैन बी कलेक्टेड। और है इन्वेंटोरीज ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल बचा है दैट कैन ऑल्सो वर्किंग आपका करेंट एसेट में जाएगा। फिनिश्ड गुड्स को आप बेच के आपका कैश आपको मिल सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो करेंट एसेट्स। सो करेंट लाइबिलिटी, करेंट हम वर्किंग कैपिटल को हम देख सकते हैं करेंट एसेट डिवाइड बाई सॉरी माइनस करेंट लाइबिलिटी। सो करेंट लाइबिलिटी में क्या जाता है, जो भी आपका करेंट लाइबिलिटी मतलब जैसे हम बोले थे दैट इज द ऑल द लाइबिलिटीज विद इन, मेन बात है आपका विद इन 12 months, सच एज अकाउंट्स पेएबल, जो भी आपका अकाउंट रिसीवेबल विल बी करेंट एसेट एंड आपका जो भी आपका रहेगा अकाउंट पेएबल, राइट। सो दैट इज करेंट लाइबिलिटी। सो ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल, जस्ट हैव द बेसिक आइडिया। सो जो मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल रहता है दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, राइट। बिकॉज क्या वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या है आपका करंट एसेट है। सो ये हमारा जो कैश मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है हमारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, और एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और एक अकाउंट पेएबल मैनेजमेंट। अकाउंट पेएबल किस में है आपका करंट लायबिलिटी। सो ये है इसमें आपका हेल्प करता है। ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ गया बी में क्या है रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, ये एक फार्मूला था। सो बी ये जो रेशियो है, ये सब रेशियो के कॉम्बिनेशन सब रेशियोज है। सो रिटेन अर्निंग व्हाट इट इज दिस, रिटेन अर्निंग इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम लेफ्ट ओवर फॉर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड आउट डिविडेंड टू इज शेयर होल्डर्स। सो डिविडेंड कब हम, जैसे कि कोई शेयर होल्डर्स है कभी इन शेयर मार्केट, सो शेयर होल्डर्स आफ्टर द ईयर एंड और इंटर्न डिविडेंड भी कस्टमर को पे किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट्स। सो आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, जैसे कि कस्टमर का जो टोटल है मतलब पकड़ लीजिए 100 है, सो उसमें से उसने 5 रुपया दिया है आपका डिविडेंड, राइट। सो नेट इनकम लेफ्ट ओवर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड, 5 रुपया पे करने के बाद उसका जितना बचा, कितना बचेगा 95। सो दिस इज द रिटेन्ड अर्निंग, राइट। 95 रुपीज इज द रिटेन अर्निंग wherever 100 rupees is the total earning earned by the company in that financial year and 5 rupees is the dividend, राइट। जब आप टोटल अर्निंग से डिविडेंड को माइनस कर लेंगे जो भी बचेगा दैट इज रिटेन अर्निंग। और एक इम्पोर्टेंट है कस्ट मतलब जो कंपनी है वो उसका जो प्रॉफिट के बेसिस के पर ही आपका डिविडेंड पे करता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है देन ओनली द कंपनी विल पे द डिविडेंड, एंड अगर कंपनी लॉस होता है इस केस में, अगर कंपनी के लॉस है नेट लॉस इन एनी फाइनेंशियल ईयर देन द कंपनी विल कैन नॉट पे डिविडेंड्स और रिटेन अर्निंग इन द केस ऑफ नेट लॉस, राइट। सो अगर लॉस रहेगा देन नो डिविडेंड, सो देयर विल बी नो रिटेन अर्निंग। एंड प्रॉफिट के केस में रिटेंशन ऑफ अर्निंग इज फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी है इट इज डन फ्रॉम द प्रॉफिट्स ओनली, इट हैज़ द रिलेशन विथ प्रॉफिट्स। सो ये आपका वेरी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है सी, मतलब क्या है EBIT बाय टोटल एसेट। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ये क्या है, इज कंपनीज नेट इनकम, जो भी उसका इनकम रहेगा बिफोर पेइंग एनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, राइट। सो जैसे कि कोई कंपनी का इंटरेस्ट टैक्स एंड टैक्स मिला के पकड़ लीजिए 10 रुपीज़ है, राइट। और उसका जो आफ्टर डिडक्टिंग दिस उसका 90 रुपीज़ है। और उसको अगर हम बोलेंगे उसका अर्निंग EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका डिडक्शन ये है 10 रुपीज़ और ये है उसका 90 आफ्टर द डिडक्शन, तो उसका EBIT कितना हो जाएगा बिफोर, मतलब 90 प्लस 10। ये थोड़ा हम इनडायरेक्टली हम कैलकुलेशन किए तो टोटल 100, जैसे कि उसका 100 था EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो 10 रुपीज़ वो टैक्स दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, ठीक है। सो उसका नेक्स्ट नेट इनकम क्या हो जाएगा उसका 90 रुपीज़ हो जाएगा आफ्टर पेइंग। बट हमारा इस क्वेश्चन में हमें ये देना है कि बिफोर पेइंग द इंटरेस्ट और टैक्स,
तो हमारे लिए ये 100 को ही कंसिडर कर लेना है, ठीक है। So next one is EBIT is used to analyze the performance of the company's core operation. Important factor is this: core operation without the costs of the capital structure and tax expenses impacting the profit. So here the EBIT is more focusing for the performance of the core operation, and it has no relation with it has not including the capital structure or tax expenses, right? Before any types of tax expenses, before considering the capital structure, it has focusing for the performance of the core operation, right? So this is all about the EBIT. Just try to remember how we are going to calculate this. अगर आपका क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कि आफ्टर द डिडक्टिंग द टोटल नेट इनकम इज 90 रुपीज़ एंड समथिंग लाइक 10 रुपीज़ इज द टैक्स, देन व्हाट इज द EBIT? EBIT है आपका आफ्टर डिडक्शन कितना हो गया, 90 हो गया, और हमें बिफोर चाहिए, मतलब जो भी आपका डिडक्ट हुआ है टैक्स या कोई भी इंटरेस्ट पे हुआ है उसको हम ऐड कर लेंगे 10 रुपीज़, तो टोटल हो गया 100 रुपीज़। तो अगर आपको EBIT मिल गया, टोटल एसेट है, देन आप C मिल जाएगा तो उसको आपको 33 जो कितना है जो भी है आपका उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा D. What is the next one is D. D मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दिस इज, सो पहले हम जान लेंगे व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज लायबिलिटी which is more than 12 months. Simply just try to remember any types of liability. We can say term loan. If that the loan is more than 12 months, then it will be long term liability. So this is just a basic example. So first we consider the market value of equity, right? So here this is market value of equity is the total dollar value, whatever the total dollar value of a company's equity, and is also known as market capitalization. So we can say market value of equity is also known as market capitalization. This measure of a company's value also known as market cap. सो ये जो कंपनी का वैल्यू क्या है, मार्केटेबल वैल्यू क्या है, मतलब जो भी उसका इक्विटी है उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, मार्केट में उसका कितने रुपए में है। जैसे कि कोई भी कंपनी का एक्चुअल है पकड़ लीजिए 10 रुपीज़, पर उसका मार्केट वैल्यू अगर 20 है, देन दैट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट इक्विटी। सो नेक्स्ट है देखते हैं कि ऑल्सो नोन एज मार्केट कैप, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करेंट स्टॉक प्राइस बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जैसे कि आपका पकड़ लीजिए आउटस्टैंडिंग शेयर 10 है और करेंट मार्केट प्राइस उसका 2 रुपीज़ है। सो टोटल इसका जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 2 × 10 डिवाइड बाई 20। सो जितना भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स रहेगा एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई द करेंट स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई विथ द टोटल outstanding shares, then we can easily get the market value of equity or market capitalizations, और इसको हमें डिवाइड कर लेना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को देख लेते हैं। व्हाट इज लॉन्ग टर्म liabilities? Long term liabilities are financial obligations of a company that are due more than 1 year. I told you na. So that are due more than 1 year. So anything that is 1 year above, that is long term liabilities, right? So the current portion of long term liabilities debt is listed in separately to provide a more accurate view of the company's current liquidity and the company's ability to pay current liabilities as they become due. देखिए अगर करंट लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी मतलब क्या है, लेस देन 1 ईयर। अगर इट इज़ ड्यू, ड्यू मतलब क्या, दैट इज नॉट पेड विद इन द 1 ईयर। इफ नॉट पेड विद इन द 1 ईयर देन दैट विल बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दैट विल बी कन्वर्टेड। सो ये कंपनीज एबिलिटी को इम्प्लाइज करता है कि हाउ द कंपनी इज एबल टू पे द करंट लाइबिलिटीज एज दे बिकम ड्यू। इफ द करंट लाइबिलिटी इज बिकमिंग ड्यू एंड द company is able to repay the current liabilities, we can decide by using this long term debts, right? So example of long term debts में क्या होता है, bonds repayable, these are the things can easily consider. First one is bonds repayable, long term loans, capital leases, pension liabilities, post retirement healthcare liabilities, deferred compensations, deferred revenues, any type of deferred, that are all the deferred are long term liabilities, remember. So next one is deferred income taxes,
derivative liabilities. So these are the examples of long-term liabilities. For your convenience, you can easily remember anything more than 1 year, any liability more than 1 year, that is long-term. What is current liabilities? Any types of liabilities less than 1 year or 12 months, we can say, right? That is current liabilities. So next हमारा है जो E, very important one. सो नेक्स्ट इज ई, ठीक है. सो ई हमारा क्या है? सेल्स डिवाइड बाई टोटल एसेट, ठीक है. सो सेल्स क्या है? वॉट एवर वी आर सेलिंग टू द कस्टमर, दैट मीन्स दिस इज द डेफिनेशन. लेट मी शो यू दिस. Sales are activities related to selling or the number of the goods sold in a given targeted time period. The delivery of service of a cost is also considered as a sale. जैसे कि A है और B है, तो ये सेल हम कैसे माना जाएगा? A जब कोई भी इसके पास प्रोडक्ट है, पकड़ लीजिए P है एक प्रोडक्ट, ये B को क्या करेगा ना, प्रोडक्ट को डिलीवरी कर देगा. जब ये A B को प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है एंड B क्या कर रहा है, उसको इन रिटर्न उसको कुछ कॉस्ट पे करेगा. सो ही डेफिनेशन है. डिलीवरी ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू or by considering for a cost for some amount, that process is called selling. That's something excess. You need to product deliver हो रहा है in exchange of some amount or cash or cost. That is sell process. So this is something. Total asset, I told you, the total amount of asset owned. Remember this. Whatever the asset definition means whatever the things that is owned by the company, by or person or any types of entity, right? That is total amount of asset. It can something like fixed asset, current asset, and what is total asset? This is the combination of both fixed asset and current assets. सो दिस इज द एसेट का आपका जो इक्वेशन है, बेसिक अकाउंटिंग की इक्वेशन ये है. एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इन द अकाउंटिंग इंडस्ट्री. सो लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर का इक्विटी को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है आपका अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, ठीक है. सो नेक्स्ट है एसेट्स आर डिफाइंड एनीथिंग as anything that business owns has value and can be converted to cash. Most important thing is whatever if fixed asset, जैसे आपका कोई फर्नीचर रहेगा, मशीनरी रहेगा, दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स. कोई कंपनी में मशीनरी है, दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स. एंड हाउ विल सी मशीनरी को अगर सेल कर देगा कोई कंपनी, देन उसको क्या मिलेगा? कोई अमाउंट मिल जाएगा, इन रिटर्न उसको कैश मिल जाएगा. सो एनीथिंग द एसेट मस्ट बी एबल टू कन्वर्टेबल टू कैश, देन वी कैन से द asset is more valuable for that company. So any asset by default can be converted to cash. If we sell the asset, हम अगर उसको sell करते हैं from anyone, then at least less or more will get some cash. So all the assets can be convertible to cash. ठीक है. So these are the three ranges of numbers which show the financial status. So ये आपका हो गया कि आपका जो ऑल्टमैन का जो टोटल डेफिनेशन है, सो फुल्ली इससे आपको पता चल जाता है कि टोटल उसका क्या है, ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं कि आपका फुल जो इक्वेशन है ये है कि आपका पहले 12 याद रख लेना है, 14 याद रखना है, 33, 06 एंड 10 ये हो गया E D C B A. इसको ऐड कर देना है आपको 13, 12, 14, 33, 06, 10 कर देना है. इसको सब पॉइंट होगा, ये होगा 1.0, 0.6, 3.3, 1.4, 12. सो ये आपका इक्वेशन हो गया. ABCDE आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो अभी आपका जो है नेक्स्ट कि देयर आर सम रेंजेस. ये जो ऑल्टमैन जेड स्कोर है, तो ये क्या है? सो ये हमारा क्या करता है, जो कंपनी इन रिगार्ड टू बैंकरप्टी, कंपनी एक्चुअली एबल टू पे कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, उसको स्टेटस, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो इससे हमें पता चल जाएगा. और विथ रिस्पेक्ट टू बैंकरप्टी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी हमें पता चल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेंजेस. एक रेंज है ये जो स्कोर का, उसको हम देख सकते हैं. ये है फर्स्ट रेंज. अगर स्कोर जैसे जेड्स का स्कोर अगर 3 और 3 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उस केस में ये जो है दैट इज सेफ जोन. अगर जेड
ऑल्टमैन जेड का स्कोर आपका 3 से ज़्यादा है, दैट इज द सेफ जोन. दैट मीन्स द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस इज ओके एंड इज फाइनेंशियल हेल्दी. इफ यू आर इन्वेस्टिंग, दैट वुड बी ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन. अगर एनी टाइप ऑफ कंपनी व्हिच हैज ए ऑल्टमैन जेड स्कोर of 3, more than 3, then we can easily say that that company is very healthy, right? मतलब financially strong. That means the company is not declare bankruptcy at any type of point of time. That company cannot be bankruptcy. So ये बहुत अच्छा रहेगा कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट. सो और जो नेक्स्ट है, फर्स्ट है 3 और मोर देन 3 जेड का स्कोर. नेक्स्ट है आपका 2.9 टू 1.8. अगर स्कोर आपका 2.9 टू 1.8 के अंदर रहता है, देन इट इज़ ये वाला जो रेंज है इसको हम बोलेंगे ग्रे एरिया. ठीक है, फर्स्ट वन इज सेफ एरिया और इसको हम बोलेंगे ग्रे एरिया. कंपनीज व्हिच हैव ए स्कोर लाइंग इन दिस रेंज आर नॉट वेरी सेफ. ये इतना सेफ नहीं है और इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है. If the finances are not stable and the company may get into danger zone if they are not there are improvements. So इस केस में कंपनी को इम्प्रूवमेंट अपना फाइनेंशियल जो भी फैक्टर है जिसमें भी उनको लूज फैक्टर दिख रहा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए एंड दैट लूज एंड शुड बी रिपेयर और एल्स दैट विल बी एंड अप इन द डेंजर जोन. सो इसमें कंपनी को थोड़ा हाई इफेक्टिव वे फॉलो करना चाहिए और सो दैट देयर फाइनेंशियल पोजिशंस और ऑल द रेशियो फैक्टर विल बी इंक्रीज एंड द स्कोर विल बी गो टू द 3+. सो द दिस इज द रेंज दैट इज ग्रे एरिया, दैट इज नेदर सेफ जोन नॉर completely not safe zone also. ठीक है, सो ये वाला हम देख सकते हैं 1 to 1.8 to 3 दैट इज 2.9. इस केस में जो कंपनी राइट टू डिक्लेयर, मतलब अगर कंपनी इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स फाइनेंशियल पोजिशंस देन इट मे डिक्लेयर टू बी एज द बैंकरप्टी. मतलब अभी तक आपका डिक्लेयर हुआ ही नहीं पर होने वाला है, मतलब सेफ नहीं है और सेफ भी है, मतलब बीच में. अगर ये है आपका सेफ जोन, ये आपका नॉट सेफ जोन. सो ये जो बीच वाला पोजीशन है वही वाला है कि डिक्लेयर टू बी बैंकरप्टी. ठीक है, सो इसमें क्या है कि हमें जो कंपनी को स्टेप्स लेना चाहिए. इम्प्रूवमेंट अपना जो फाइनेंशियल फैक्टर है कहाँ पर लैगिंग कर रहा है उसको इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट वो वाला हो जाएगा. ऐसे कोई फैक्टर में आपका सेल्स लो हो रहा है, ठीक है, सो उस केस में उसको अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसका प्रमोशन को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. सो नेक्स्ट जो स्कोर है, अगर 1.8 से जो स्कोर लेस हो गया, व्हाट इज 1.8, देन इट इज़ द वेरी डेंजरस वन. दैट इज दिस इज द डिस्ट्रेस जोन, वी कैन से डेंजर जोन completely, red area this is. So the lower the score, the more danger there is in danger in the company becoming insolvent. So company इस केस में has a very chance to be insolvent एंड दिस इज कम्प्लीटली 1.8 से जितना लो होते जाएगा, अगर 1 हुआ तो वेरी डेंजर और भी लो, मतलब 1.8 से उसका कट ऑफ पॉइंट है, उससे ज़्यादा लो हो जाएगा तो द कंपनी इज़ कम्प्लीटली इन द रेड एरिया एंड डिस्ट्रेस जोन. ठीक है, सो दिस इज एंड इस टाइम में क्या है, कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ ग्रीन एरिया. मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आपका शेयर होल्डर से, दे विल बी एंड पब्लिक व्हाट एवर दम, so they will not interest to invest or they will not have any interest to invest in this company, or and simultaneously those who have already invested in this company who are having less than 1.8 Z score, they will face some loss. ठीक है, so 0 to 1.8 indicates the company will declare bankruptcy in the future. That is, in the upcoming future, the company is going to declare to be, it's very sure that the company will be bankruptcy very soon and insolvent also. So this is the important one. ठीक है, so we need to these types of things we can easily calculate by using the Z score. So इसके साथ हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि सम टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स. ठीक है, numericals and some calculations, there will be some more calculations so that it will be more helpful in the exams to how you are using this formula to calculate the Z factor. So hopefully आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. So till that point, अगर आपको अच्छा लगा है लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए and till that point as always keep studying. Thanks for watching our videos. Thank you.